अच्छा, माइक किसी का ऑन है? कैन यू टर्न ऑफ द माइक अगर शोर है? अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग. अच्छा, नाउ ए लेवल जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स विद एनर्जेटिक्स. नाउ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, वो definitions, etc., enthalpy neutralization, Hess law, Hess cycle, all of that, MC delta T, calculating enthalpy in a solution. So all of those you've already covered. Uh, so A levels के अंदर I'm just going to write a percentage के around 20% would be 20% or 30%. It's going to be a small topic. 70% is already done in AS. 30% जो रह गया ना थोड़ा सा, ठीक है, you're going to cover that. और उसके अंदर it's entropy. Plus the concepts are entropy is completely different, but it's a very small topic. इसमें ना solution, delta H solution, delta H lattice energy, ठीक है, delta H hydration, the enthalpy changes that you missed out in AS, that's going to be covered in A levels. ठीक है, लेकिन छोटा सा topic है. अच्छा, next one is equilibria. ये बस करने के बाद ना we'll start with entropy. Equilibria is again, let's say 50%. The rest of the 50% of equilibria is going to be covered in A levels. Equilibria can you did mostly KC and KP, but over here the concept would be pretty much the same, but you'll have other equilibrium constants which would have exactly the same concept. So it's not going to be a different concept. उसमें क्या होगा, dissociation constant होंगे, KW होगा, water ionization constant, KSP, kind of the same concept. That's going to be covered in A levels. Rate of reaction ये electrochemistry कर लेते हैं. अच्छा, electrochemistry, 70% of electrochemistry would be covered in A levels. क्योंकि O levels में you didn't really do much. Sorry, O levels कह रहा हूँ, AS में you didn't really do much. You did redox and balancing equations, so that wasn't a lot. So your topic है ना, actually most of it would actually be done in A levels. तो कुछ टॉपिक्स जो थे ना वो AS में ना आपने बहुत कम किए थे. तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ. इक्विलिब्रिया एंड electrochemistry. Most of it is going to be covered in A levels. ठीक है, आपका मेजर टॉपिक है. और फिर एक रह जाता है रिएक्शन काइनेटिक्स. अगेन AS के अंदर यू डिडंट रियली डू अ लॉट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स. मतलब AS में ना आपने तो बस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और दो तीन चीजें बस पता की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारा एक्टिवेशन एनर्जी, बेसिक चीजें आपने पढ़ी थी. So again, this would mostly be covered in. ठीक है, ये भी आपका ना 70% जो बाकी रह गया ना, that's going to be A levels. So that's physical chemistry for you. कि physical chemistry में these are your three main big topics. अच्छा, A levels का जो syllabus है ना, overall that's lesser compared to AS. AS में the syllabus is a lot bigger. A levels में ना आपको mainly ये तीन topics पढ़ने हैं, वो भी थोड़े बहुत आपने introduction वगैरह ना AS में पहले ही कर लिए. So it's not going to be that difficult. Equilibria थोड़ा सा difficult है, electrochemistry थोड़ा सा difficult है, लेकिन mathematical, it's more like moles. ठीक है, a lot of this is like moles. It's more about understanding, और रट्टे वाली चीजें कम है. चलिए, ये सब clear है? Ibrahim Hala, is this clear? Maria, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, moving on, next one, inorganic chemistry. अच्छा, again मसला ये है कि when you do inorganic chemistry, तो अच्छा, inorganic chemistry में
it's very rare that they directly ask you big things about AS stuff. लेकिन वो जो AS वाली चीजें ना, that is still needed. मतलब कम पूछते हैं उसपे. But a lot of stuff about ग्रुप 2 की एक थोड़ी सी चीज करनी है, वो A levels में करनी है. लेकिन ग्रुप 2 और पीरियड 3 या केमिकल पीरियोडिसिटी, you had period 3 लिख देते हैं. You had group 17, you had nitrogen and sulfur. वो सारे का सारा जो था ना, वो you did this in AS. A levels के अंदर the only thing that's left is transition metals. ठीक है, that's the only thing left. तो फिजिकल में तो ये पुरानी चीजें ना, ये तो सारी आई. अच्छा, ये प्लीज मदिया, माइक आपका ऑन होता है. अच्छा, इनऑर्गेनिक केम जो है ना, उसके अंदर that's very small. तो पुराना जो AS वाला है ना, they're not going to ask a lot of things out of it. थोड़ा बहुत कभी कभार पूछ लेते हैं. लेकिन mostly it's transition metals, and transition metals के ऊपर the questions are very typical, very easy. वो बड़े straightforward होते हैं. It's always the same questions that get repeated over and over again. और finally organic chemistry है. ठीक है, you got organic, और बीच में current में analytical chemistry भी है. अच्छा, organic chem is यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि you need to know all of your AS organic. ठीक है, मतलब वो by default आपको पता होना चाहिए. All AS organic chem required. और A levels की जो organic chemistry है ना, that's not that much. लेकिन it's all revolving around benzene. Structure वही है, quantity थोड़ी सी कम है. अच्छा, benzene and its derivatives, उससे associated compounds. Benzene वो ring type structure होता था. You must have seen somewhere in the questions. अच्छा, you've got carboxylic acids. अच्छा, you've got अच्छा, और क्या, you've got sorry, nitrogen compounds. इसके भी ना derivatives. amines etc. ठीक है, वो सारे आ जाते हैं. और प्लस थोड़ा बहुत एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, that's required. So overall what happens is कि three main topics in physical, one topic in inorganic, और फिर organic है. ठीक है, so जो width है ना syllabus की, that's not that much, except the only problem is कि AS के अंदर you would be required to know all of your AS organic. Inorganic में अगर आप एक ही टॉपिक रिवाइज कर लो, बस ट्रांजिशन मेटल्स, दैट वुड बी सफिशिएंट. फिजिकल में आपको पुराना थोड़ा ना वो मोल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब आपको ऐसी पुराना सारा पता होना चाहिए. बल्कि वो सारा ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रिया जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वील स्टडी द बेसिक्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो वील ऑब्वियसली स्टडी द बेसिक्स एज वेल. So all of that would be required. चलिए ठीक है, ये सारा क्लियर है सिलेबस. Yes, sir. Okay, next is you've got paper 4. Papers का बता दें, paper 4 and paper 5. So most of your A levels grade depends on around 40%. This has a weightage of around 40%. It's got 100 marks. Or paper 5 जो है ना, that's उसकी weightage I guess around somewhere around 10%, 9 point something, या पे 9 है या पे 11 है, but somewhere around 10%. And it is a 30 mark paper.
100 mark wala jo, that's for 2 hours, or 30 marks wala, that's for 1 hour. Acha, paper 5 is like an ATP. This is your structured exam. It's similar to your paper 2, that's it. मतलब paper 2 करते हो ना, so it's exactly, but it's a big paper. It's a 2-hour paper. It's got and you get asked about everything. क्योंकि 100 mark का paper है, 10 questions होंगे, तो हर topic पे question है. It's not like paper 2 in AS. AS में ना वो 4 questions होते थे या 5 होते थे AS paper 2 में. So most of the time you would get asked about you get asked questions about 3-4 topics at best. Paper 4 में होगा, you'll be asked questions about everything, और हर चीज के ऊपर ना डिटेल में क्वेश्चन होगा. तो it will be a pretty it's going to be a pretty time consuming paper. Paper 5 is like your ATP. Simple है उसकी. Normally क्या करते हैं कि you don't it's more about a common it's more like a common sense paper. ATP अगर आपने, if you've done ATPs in IGCSE, it's very similar to that. They'll just give you a random experiment and they'll ask you questions about that random experiment. A lot of thing would be a lot of design. They'll ask questions about design, about planning the experiment, about analyzing the results of an experiment. So paper 5 is like that, and वो इतना मुश्किल नहीं है. This is not something that you should really seriously worry about. वो एंड में ना लास्ट 1 month के अंदर भी ना आप पेपर 5 की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा. अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है सिलेबस और उसके ऊपर पेपर्स के बारे में? इब्राहिम, हाला, बदरिया, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? ये आवाज आ रही है? Sir, ये जो paper 5 है, it's like an Yes, ATP, sir. alternative practical. हाँ, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल ना. मैं अगर और सिंपल होता है. मैं अगर दिखा दूं ना पेपर 5, लेट मी शो यू पेपर 5. अगर 1 सेकेंड. So let me just जो पेपर 4 है ना, वो तो एग्जैक्ट आपका पेपर 2 है ना, एग्जैक्टली उस तरह है. ठीक है, तो पेपर लेट्स से 5-2. पता नहीं लग क्यों नहीं. 1 सेकेंड. इट्स ओपन है. ठीक है, दिस इज पेपर 5. सॉरी, वन. मैं अभी वाला चेक कर रहा हूँ. टाइम 1:15 लिखा हुआ है इस पे. लेटेस्ट सिलेबस में देख लेता हूँ. अच्छा, सो दे जस्ट गिव यू एन एक्सपेरिमेंट. उसके स्टेप्स वगैरह, एंड इट कुड बी एनी एक्सपेरिमेंट. एंड ये मोल्स के क्वेश्चन है. गिव यू आंसर टू नियरेस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल बेंजोएट. तो मोल्स के क्वेश्चन जैसा वो आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नहीं होता टाइट्रेशन वगैरह के. द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज दैट यू कुड बी आस्क्ड any question. ठीक है, you could be asked question on any experiment. इसके कोई set pattern नहीं होता कि कौन सा experiment है. तो जैसा ये question है ना, describe the steps the student should take to make 100 cm³ or 1 mole per dm cube NaOH. ठीक है, तो अब ये डिजाइन का आ गया कि how do you make a solution, कि कितना amount of NaOH should be dissolved in what amount of water, what are the steps taken, what are the apparatus that is required. ठीक है, तो वो एक दफा इस मतलब गो थ्रू करें कुछ चीजें कि हाउ टू मेक अ सोल्यूशन. तो इसके अंदर ज्यादा चीजें जो है ना, क्योंकि इट्स डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड देन एनालाइजिंग. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेसिक. वो फिर उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इज गोइंग टू आस्क यू अ कपल ऑफ थिंग्स. तो 2 क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं.
जैसा वो पूछा ना, explain why it is necessary to reflux the mixture, why a naked flame is not used. तो बहुत दफा ना इसके जो आंसर्स होते हैं ना वो बहुत बेसिक से होते हैं, ठीक है. Explain the purpose of transferring the liquid in step 6, मतलब वो उसके बारे में छोटी छोटी चीजें पूछेगा. So if you practice some of it, you'll get an idea. और थोड़ा बात obviously आप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड चीजें आप पढ़ लेते हो. ओके, सोल्यूशन बनाना है तो किस तरह बनाना है, अगर किसी चीज को हीट करनी है तो किस तरीके से हीट करते हैं, कितने तरीके हैं जिनसे आप हीट करते हो. तो तो we'll obviously study some basic stuff, लेकिन most of it is just going to be very very basic, ठीक है. मतलब वो suggest why it is necessary to cool the mixture before filtering. तो इब्राहिम, ये आइडिया क्लियर है कि एटीपी में ये जो P5 है इसमें क्या पूछ रहे होते हैं? यस सर, समझ आ गई. हाँ, वो बल्कि एक क्वेश्चन होगा वो ग्राफ के ऊपर होता है, उसमें ग्राफ बना देते हैं, फिर वो आपको ना उसके बारे में डेटा टेबल में डेटा भी कैलकुलेट करके फिर वो ग्राफ बनाने की को भी कहते हैं प्लॉटिंग द ग्राफ. इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं. वो जैसा एटीपी आईजीसीएसई एटीपी में अक्सर होता था, बल्कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी होता है, वो डेटा प्लॉट कर रहे होते हैं ग्राफ पे, ठीक है. तो ये क्लियर है, P5 क्लियर है. यस सर. तो जस्ट रिमेंबर P5 के ऊपर इतना फोकस नहीं होगा. P5 जो है वो आप लास्ट वन मंथ या लास्ट 2 वीक्स में भी अगर आपके पास टाइम हो ना, वो उसके अंदर भी हो जाता है, ठीक है. मतलब हीटिंग करने के कितने तरीके हैं वो 5 मिनट में पता लग जाते हैं. सोल्यूशन आप प्रिपेयर कैसा करते हो वो भी पता लग जाता है, ठीक है. तो वो आप उसका इतना इशू नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हम साथ साथ वील वीक में एक दफा ना विल ट्राई एंड डू वन क्वेश्चन P5, ठीक है, ताकि उसकी प्रैक्टिस चलती रहे P5 की. और P5 मेनली प्रैक्टिस ही है, और कुछ भी नहीं है. अच्छा चलें, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टॉपिक, ठीक है, एनर्जेटिक्स से. एंड वी कैन स्टार्ट विद एंट्रोपी, ठीक है. तो उससे स्टार्ट करें. डज एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट एंट्रोपी इज? हाला, बदिया, इब्राहिम, कभी हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड एंट्रोपी? सुना कि नहीं सुना? आवाज आ रही है? नो सर, आई हैवंट हेard. No, sir. ठीक है. अच्छा खैर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. अच्छा, entropy is and it's got applications in a lot of fields. Entropy is something, it's called disorder. It's basically, it's the measure of मतलब इसका ये literal, वो अगर पूछेगा ना कि क्या होता है entropy, you're going to write it's the measure of disorder of a system. मतलब कुछ इसकी थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन the basic definition that they accept, everyone accepts, that's measure of disorder of a system, that's it. तो literally when you hear the term entropy, it means disorder, that's it, ठीक है. तो disorder and the symbol for entropy is S, ठीक है. ऊपर अगर नॉट डला हुआ ना, दैट मीन्स इट्स स्टैंडर्ड एंट्रोपी. तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ. द नॉट इंडिकेट्स दैट जो भी कैलकुलेशन हुई है ना, दैट्स हैपनिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या, दैट्स 298 केल्विन्स. और क्या है, 1 atmosphere प्रेशर. और अगर सोल्यूशन होगा, इट्स गोइंग टू बी 1 मोल per dm cube. ठीक है. सो that's just the symbol, that's it. Not अगर नहीं डला हुआ ना, that means it's being calculated under non-standard conditions. अच्छा, delta S is what we are more interested in, ठीक है, नॉट डाल देते वैसे. That's known as the change in entropy. अच्छा, remember entropy word अगर सुन रहे हो ना, that just means disorder. So when I say change in entropy, you should hear change in disorder. But literally just means change in disorder. So delta S is how
is the disorder changing? Or delta S अगर positive है ना, that means if the delta S is positive. तो उसका मतलब है disorder increases, या it means entropy increases. Here again, entropy literally means disorder. And if your delta S is coming out to be negative, that means entropy or disorder decreases. तो अभी ना हम calculation कोई नहीं करेंगे. We'll just try and understand कि what does delta S positive mean, what is delta S negative, right? Delta S positive, disorder बढ़ रहा है, and delta S negative means disorder is decreasing. Now, so I'll give you real world situations. You've got a neat and tidy room, right? And you've got, one second. And then you've got, hold on a second. And then you've got a, क्या कहते हैं, neat and tidy का opposite क्या होगा? An untidy room. You've got an untidy room. अब मुझे बताओ कि which one is the low entropy state, which one is the high entropy state? सर अनटाइडी रूम हाई एंट्रोपी होएगा, नीट एंड टाइडी वाला लो एंट्रोपी. ठीक है, high disorder. Entropy का मतलब literally disorder, ठीक है? तो this is disordered, high entropy, ठीक है? And this is neat and tidy, so it's less disordered. That means it's no entropy. ठीक है, हाला मदिया, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो सिंपल कौन सा, एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर है, और चीजें कम डिसऑर्डर्ड होती हैं लो एंट्रोपी, और हाई एंट्रोपी डिसऑर्डर्ड होती हैं, ठीक है? अच्छा, यू मूव फ्रॉम लो एंट्रोपी टू हाई एंट्रोपी, तो मुझे बताओ डेल्टा इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. हाँ, क्योंकि डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस डेल्टा एस इज पॉजिटिव. वापस रिवर्स आ रहे हो, तो इसका मतलब है डिसऑर्डर Negative. नेगेटिव, कम हो रहा है, डिसऑर्डर कम हो रहा है, ठीक है? मुझे तो इस सर पे, जी सर ये जो आपने ये लिखा हुआ है ये डेल्टा एस नॉट ना चेंज इन एंट्रोपी, तो ये चेंज इन एंट्रोपी जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर नॉट का साइन है, मतलब हाँ चेंज हो रहा नॉट, है एंट्रोपी में, लेकिन हाँ वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है ना. हाँ एग्जैक्टली. पर नॉट जो है ना, उसका मतलब स्टैंडर्ड है कि वो जो भी चीज कैलकुलेट हो रही है ना स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं डाला हुआ, उसका मतलब ठीक है है. फिर किसी और कंडीशंस में हो रहा है फिर, ठीक है? ठीक है सर. राइट. तो वो तो कैलकुलेशन पे आएगा, जब हम कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे ना फिर हम उसके बारे में सोचेंगे. मैंने बस वो कहा है नॉट अगर डला हुआ है उसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी है, तो ठीक है सर. नॉट बस इंडिकेट करता है कंडीशंस, ठीक है? ठीक है सर. अच्छा, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे तो देयर टू एरोस, डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा इज नेगेटिव. व्हिच वन, which movement do you think is the easier one? Like neat and tidy room से ना you're going to the untidy room, मतलब change of state है. Is that easy or is that difficult? या untidy room है, Difficult. नहीं, is it difficult to make your room untidy? No, sir, it's not difficult to make your room untidy, but it's easy. It's मतलब आपको, difficult हाँ to make it tidy. हाँ तो सर रूम को अनटाइडी इजीली किया जा सकता है, लेकिन अनटाइडी को दोबारा सेटल डाउन करना आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, एग्जैक्टली. हाला, इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, so remember delta is positive. Now this is a universal law, ठीक है, which is that delta is positive is always easy. I mean, you don't, if you want to make your room untidy, right, you don't really have to do anything. वो खुद ही हो जाता है, मतलब आप कुछ भी नहीं करते, कोई खास एफर्ट भी नहीं करते, and at the end of the day your room is actually, it becomes untidy, right? But to go from this point to this point, that a lot of effort is required, ठीक है? तो इसको किसी भी चीज पे अप्लाई कर लो. लेट्स से you've got
मैं एक वो बना लेता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ जार, ठीक है, और वो जार जो है ना, जार बना ले पहले, एक सेकंड। अच्छा, लेट्स से आई हैव अ जार, एंड इन दैट जार आई हैव गॉट मार्बल्स, ठीक है। तो उसमें ना ब्लू रंग के मार्बल्स हैं विच आर नीटली स्टैक्ड। इनको क्या हो गया ब्लू मार्बल, एक सेकंड। चलो खैर वो फ्री, अच्छा फिर उधर चले गए, 1 सेकंड इसको। अच्छा, ब्लू मार्बल्स हैं एंड आई हैव गॉट दीज ऑरेंज मार्बल्स। अच्छा, और दूसरी साइड पे ना व्हाट आई हैव इज के आई हैव द सेम जार, और इसको ना मैं शेक करता हूँ। लेट्स इसको 10 टाइम्स शेक करता हूँ, ठीक है। व्हाट हैपेंस नाउ, नाउ दिस इज योर लो एंट्रोपी स्टेट। तो मैं ना लो एंट्रोपी, लो एस कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आई शेक इट लाइक 10 टाइम्स, व्हाट हैपेंस इज कि all the marbles, they're eventually going to get mixed up and they're going to become disordered, ठीक है। अब कुछ इस तरह होगा कि ब्लू वाले होंगे, ठीक है, और कलर नहीं चेंज हो, एक से। अच्छा, अब वो डिसऑर्डर स्टेट हो गया, और जितनी दफा भी मैं उसको शेक करूंगा ना, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई शेक इट, आई वुड ऑलवेज एंड अप विद हाई एंट्रोपी, ठीक है। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू शेक इट, इस डायरेक्शन में तो चीजें चली जाएंगी, ठीक है। दिस वुड बी वेरी इजी, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कम बैक, ठीक है। तो वो जो रिवर्स है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट पाथ इज इजी, व्हाट पाथ इज डिफिकल्ट, इज दैट क्लियर? Yes, sir. मुझे बताओ यस इसकी सर। रीजन क्या है। मुझे बताओ इसकी कैसे? रीजन क्या है। व्हाई डज योर रूम बिकम अनटाइडी बाय इटसेल्फ, लेकिन वो खुद से टाइडी नहीं होता। व्हाई डू द मार्बल्स दे गेट मेस्ड अप ऑन देयर ओन। मतलब आप बहुत ज्यादा शेक भी ना करो, they're going to reach a high entropy state but they're not going to come back to the low entropy state. What's the reason for that? सर मतलब आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू आर आस्किंग कि नहीं, मुझे मतलब बताओ इसकी मुझे बताओ इसकी मैथमेटिकल रीजन कि व्हाई डू यू क्वेश्चन, ये रीजन मुझे बताओ, व्हाई डू यू ऑलवेज एंड अप विद दिस मैथमेटिकली। Why do you always end up when you shake a jar that has marbles in it? Why do you always end up with this state? Why not the first state? सर इनकी जो मे बी जो ये बॉल्स हैं इनका जो सर्कल का जो सरफेस एरिया है वो मतलब अलाइंड नहीं है, मे बी ये नहीं रीजन चलो, हो। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेट्स से वो कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स, कहीं भी अप्लाई कर लो, प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप हमेशा, यू ऑलवेज एंड अप इन अ डिसऑर्डर्ड स्टेट, यू नेवर एंड अप इन एन ऑर्डर्ड स्टेट। मैं उसका सिर्फ मैथमेटिकल वो, क्या आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर तो बताऊँ, वो है कि प्लेइंग कार्ड्स को जितनी मर्जी दफा शफल करो ना, यू पता है कितना टाइम बाद वो वापस ऑर्डर में आएंगे प्लेइंग कार्ड्स। मैं मैथमेटिकली पूछ रहा हूँ, एनी आइडिया? वैसे इब्राहिम, एक वैसी क्वेश्चन है कि प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको आप शफल कर रहे हो, मुझे बताओ कि लेट्स से कॉन्स्टेंटली ना आप सारा टाइम, एवरी मिनट यूर शफलिंग, 1 मिनट में ना एक दफा शफल कर रहे हो, तो हम्म। मैं वैसे खुद ही बता देता हूँ। अब उसको आप बार बार शफल कर रहे हो और उनको ऑर्डर में लेके आना है, तो मैथमेटिकली बताऊँ कितना टाइम चाहिए होता है उसको शफल करने में, कि शफल आप करते रहो और वो ऑर्डर में आ जाए वापस। यूनिवर्स को ना 13 बिलियन ईयर्स की यूनिवर्स है ना, तो 50 यूनिवर्सेस का जो टाइम है ना, वो गुजरेगा ना, उसके बाद जाके ना चांस है कि वो कार्ड जो है ना ऑटोमेटिकली वापस करेक्ट ऑर्डर में आ जाए शफलिंग से। तो आई एम जस्ट सेइंग कि खैर, I'm going to come to the point, बात लंबी हो जाएगी। I'm just going to come to the point and just tell you कि why the low entropy state is so difficult to achieve, and why the high entropy state is so easy to attain. And the simple answer is probability, which is कि the number, there are infinite
खैर इस केस में तो इन्फिनिट नहीं, लेकिन there are infinite possible states which can be considered high entropy states. कार्ड्स को डिसऑर्डर में लेके आना है ना, तो वो तो इन्फिनिट डिफरेंट तरीके हैं जिससे यू कैन ब्रिंग देम इनटू डिसऑर्डर, राइट? अपने रूम को गंदा करना है ना, तो there are infinite possible ways you can make your room messy, right? Low entropy states are very few. यानी मार्बल्स को अगर नीटली अलाइन करना है तो एक ही है ना, अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स को अगर ऑर्डर में लेके आना है तो वो तो एक ही स्टेट है ना, that's only one event, right? And there are infinite possible events in which you can, वो जो कार्ड्स का जो डेक है, you can make them uh, arranged in a random way, right? So the point is, high entropy state are also high probability states क्योंकि वो इतनी ज्यादा होती हैं, ठीक है? कमरा गंदा करना इजी इसलिए कि there are infinite possible ways you can make the room untidy, right? And there's only one way you can make the room tidy, right? तो इसलिए उन सारे multitude of events में high probability state किसकी है? Being messy, being disordered, right? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कल को अगर आप सोचोगे ना कि आपका रूम गंदा क्यों हो जाता है बार बार, वो गंदा इसलिए हो जाता है कि there are infinite possible ways you can make the room untidy, but there's just one way you can make the room tidy. So the number of states are too many. ठीक है? अच्छा, तो एनीवेज ये हमने सीखना था, अभी केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है, ये इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है कि इकोनॉमिक्स में ना, लेट्स से आपने एटीएम से पैसे निकाले ना, तो वो पैसों का क्या होता है, इट बिकम्स, आपने शुरू में अपने वॉलेट में ना बड़ा नीटली उनको अलाइन किया, ठीक है? लेकिन इवेंचुअली वो पैसे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना वेरी रैंडम डिसऑर्डरली वे, कहीं से चेंज आ जाता है, तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एवरीथिंग लाइक्स डिसऑर्डर, और केमिस्ट्री के अंदर भी ना दिस अप्लाइज। केमिकल रिएक्शंस दे लाइक डिसऑर्डर, ठीक है? एंड दैट डिटरमिन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? कि ऑल रिएक्शंस दे प्रेफर टू गो इनटू डिसऑर्डर, ठीक है? और ये जो डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज इस तरह है कि things they want to get into disorder state, और वो things they naturally want to go into disorder state. तो जब वो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाने की कोशिश करती है ना, that's when you can extract work out of them. ज्यादातर जो आपकी थर्मोडायनामिक चीजें जो एग्जिस्ट कर रही है ना दुनिया में, फॉर एग्जांपल योर कार इंजन, राइट? A lot of chemical reactions, nuclear reactions, etc., they all work on this. You take things from order and you try to shift them towards disorder, and that generates a lot of energy, that generates a lot of work. ठीक है? So most of the systems that work, that you see around you, they all work on delta S positive. डेल्टा एस नेगेटिव तो पहले ही हमने कहा ना कि वो मुश्किल है, ठीक है? वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तो इसलिए ना सिस्टम्स को ना आप यू ट्राई टू गो मेक देम गो फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर. You don't actually try to make them go into, they want to go into that state, ठीक है? And when that happens, so a lot of useful work gets produced. तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि how can we make this delta S positive? How can we get work out of this delta S positive, ठीक है? तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर केमिकल रिएक्शंस के साथ भी ना इसको लिंक कर देंगे इसी चीज को, ठीक है? मतलब सेम चीज केमिकल रिएक्शंस पे सोच रहे हैं, ठीक है? चलो, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर ना ये हम इसको लेके आगे फिर फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है? और केमिस्ट्री से फिर इसको लिंक करेंगे, ठीक है? Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Okay, thank you, चलिए, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Allah टेक Hafiz. केयर, अल्लाह हाफिज.